Hello students, hope you are fine. Remember, I have given you a work regarding the meaning of amnesty. Have you searched out from your dictionary? Okay, I'll tell you the meaning of amnesty. Amnesty means general pardon. A general pardon especially for those who have committed political crimes. So that is why we are saying in Urdu aam maafi. We'll start from the fourth paragraph as it is our routine. Means I'll read out the paragraph first, then words meaning, and afterwards translation. In this last address, the Rasul said, "Revenge for bloodshed, as was the custom in the days of ignorance before Islam, is forbidden. I forgive those who murdered my cousin Ibn Rabia." Hazrat Ans bin Malik said, "I served the Rasul of Allah for 10 years. By Allah, he never objected to anything I said or did." Okay, now here is the question regarding this paragraph. How long did Hazrat Ans bin Malik serve the Rasul? We have read already here 10 years. Okay. Now we'll do the words meaning of this paragraph. Bloodshed means खून रेजी या खून बहा. खून बहा. Ignorance means जहालत. Murder means कत्ल करना. Forbidden or forbid mean मना करना. Object means एतराज़ करना. Okay, we'll do the translation. In his last address, sorry, I forgot the meaning of address. Address means khutbah. In his last address, the Rasul said, अपने आखिरी खुतबे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवेंज फॉर द ब्लड शेड, खून रेजी का इंतकाम या खून बहा का इंतकाम, एज वॉज द कस्टम इन द डेज ऑफ इग्नोरेंस बिफोर इस्लाम इज़ फॉरबिडन. खून बहा का या खून रेजी का इंतकाम एज जैसा कि वॉज द कस्टम इन द डेज़ ऑफ इग्नोरेंस, इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में. डेज़ ज़माने, जहालत, इग्नोरेंस मीन्स जहालत एंड कस्टम मीन्स रवाज. जैसा कि इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में रवाज था, बिफोर इस्लाम से पहले इस फॉरबिडन मना किया जाता है. So we can say that like in that way, revenge for bloodshed, खून रेजी का इंतकाम, जैसा कि इस्लाम से पहले जहालत के दिनों में रिवाज था, मना किया जाता है.
आई फॉरगिव दोज हु मर्डर्ड माई कज़न इब्न रबिया, मैं उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे चचाजाद भाई इब्न रबिया को कत्ल किया था। हज़रत अनस बिन मलिक सेड, हज़रत अनस बिन मलिक फरमाते हैं, आई सर्व द रसूल ऑफ अल्लाह फॉर 10 ईयर्स, कि मैंने अल्लाह के रसूल की 10 साल खिदमत की। बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू एनी थिंग आई सेड और डिड, और उन्होंने कभी भी किसी बात पर भी एतराज़ ना किया जो मैंने कही या की। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी एज मुस्लिम शुड फॉलो the noble example of the tolerance of our Rasul. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. This menace can only be cured by following the noble example set by our beloved Rasul Hazrat Muhammad. Okay, we'll do the meaning of this paragraph too. Follow means पैरवी करना. Noble means शानदार. Example means मिसाल. And the word deterioration means बिगाड़. Conflict means तज़ाद. And the last meaning prevailing means नमूदार होना. नमूदार होना या ज़ाहिर होना, you can say that. Okay, we'll do the translation. We as Muslims should follow the noble example of the tolerance of our Rasul. मुसलमान होने की हैसियत से हमें अपने रसूल के बुर्दबारी के अजीम मिसाल की पैरवी करनी चाहिए. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्ज़ाम्पल ऑफ, नोबल एग्ज़ाम्पल. अजीम भी कह सकते हैं, शानदार भी कह सकते हो. तो हम दोबारा उस वर्ड को यूज़ करेंगे. मुसलमान होने की हैसियत से हमें रसूल की बुर्दबारी की शानदार मिसाल की पैरवी करनी चाहिए. The deterioration and conflict prevailing in the society is due to lack of tolerance. माशरे में जो बिगाड़ और तज़ाद ज़ाहिर हो रहा है या नमूदार हो रहा है, वो बुर्दबारी की कमी की वजह से ही है. लैक मीन्स कमी. माशरे में बिगाड़ और तज़ाद का ज़ाहिर होना या नमूदार होना बुर्दबारी की कमी की वजह से है. ड्यू टू मीन्स कमी की वजह से. This menace can only be cured by following the noble examples set by our beloved रसूल हज़रत मोहम्मद. हम इसके ख़तरनाक रुझान पर, ये menace मीन्स ख़तरनाक रुझान, ठीक है. हम इस ख़तरनाक रुझान पर सिर्फ़ अपने प्यारे रसूल की कायम की गई शानदार मिसालों की पैरवी करते हुए ही काबू पा सकते हैं. Here cured has the meaning of काबू पाना. Okay, so I can write down here, cured means काबू पाना. I'll repeat again. This menace can only be cured by, ये ख़तरनाक, हाँ, इस ख़तरनाक रुझान पर सिर्फ़ इसी तरह काबू पाया जा सकता है, बाय फॉलोइंग द नोबल एग्ज़ाम्पल, शानदार मिसालों पर अमल करके, सेट बाय,
कायम करदा आवर बिलवड रसूल हज़रत मोहम्मद, हमारे प्यारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इसको ये हमने वर्ड टू वर्ड की थी और सीक्वेंस में होगा। हम इस ख़तरनाक रुझान पर सिर्फ़ अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा अजीम मिसालों की पैरवी करते हुए इस पर काबू पा सकते हैं। These are the words from the glossary, so you have to read it out. These words can help you out to do Urdu translation. Okay? Thank you.